Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Divine Vastu Show में every Thursday 3:30 p.m. only on Radio Zindagi GHR. Once again, happy Thursday afternoon to all of you, and thank you so much for tuning into Radio Zindagi, America's biggest and first South Asian radio network. I am Sanjeev, once again coming live to you from Radio Zindagi studio in Edison, New Jersey. It's been a busy day, extremely busy day, and that continues one after another great show. After that wonderful mega launch of that book, Letters to My Mother, and that was all put in together here, and then the author Bhavna Somaya ji, Padmashri Bhavna Somaya ji joined us, and then also added her comments into the book, and it's a wonderful book. And today is India's Prime Minister Narendra Modi ji's birthday, 70th birthday. So to wish him well, we have planned this event, and now we're getting ready to bring you Divine Vastu Talk right now on Radio Zindagi with one and only Dr. Rewa Kumar of World of Divine Vastu.com, and Dr. Rewa Kumar, who's got the experience of over 35 years when it comes to Vastu for home or business. And Vastu for all matters. It really works, and she has helped thousands of individuals all over the world when it comes to Vastu. And today being Thursday, she is with us on Radio Zindagi. Didi, namaskar, Jai Mata Di, welcome to the show. जय माता दी संजीव और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जन्मदिन की हम आप सबको बहुत बहुत, मोदी जी को खास तौर पे सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और खास तौर जब बुक आज लॉन्च हुई है टू माय मदर, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी इंस्पिरेशन होगी, हमारे जितने भी रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सारे उसको अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए मतलब कि उस प्यार को उसको समझ सकेंगे, क्योंकि सिर्फ काले अक्षरों को या सफेद अक्षरों को ही नहीं हमको पढ़ना, हमको उनसे क्या सीख मिलती है, क्योंकि नाम ही बहुत अच्छा है, टू माय मदर। तो मैं सब माओं को यही कहूंगी, सभी बच्चों के लिए कहूंगी कि आप भी मोदी जी से सीखिए हाउ टू गेट योरसेल्फ इंस्पायर एंड हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू योर मदर। जी बिल्कुल, चाहे वो अपनी माँ हो, बायोलॉजिकल मदर हो, चाहे वो अपनी जन्म भूमि हो या तो कर्म भूमि हो, जिसे हम भी माँ कहते हैं, तो इसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई थी, एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। दीदी, आई एम ग्लैड दैट यू टुक टाइम आउट to watch the event, and it was a very wonderful event. जहाँ तक मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी एक मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह थे, एंड देन धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, एंड अभी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने। मैं इसलिए ये बात छेड़ रहा हूँ कि आज करियर के बारे में बात करेंगे। करियर का जो एक ग्रोथ होता है, वो करियर का ग्रोथ एंड वास्तु से उसका क्या रिलेशन है, हाउ वास्तु कैन help to make your career growth better and to benefit you better out of that career growth. तो इसके बारे में दीदी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वास्तु और करियर ग्रोथ के बारे में आज हमारे शो में आप कुछ हमें समझाइए। जी संजीव जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे किसी समय,
मैं उसके लिए बताऊं क्या कहना चाहती हूँ, that karma indicates the effects of our action upon the world. This is what I want to say. हमारे जो अपने कर्म है, जो हम काम करते हैं, चाहे करियर लगा लीजिए, चाहे कर्म को ले लीजिए, वो अफेक्ट करते हैं हर पूरे हमारे जीवन के ऊपर में, पूरे संसार के बीच में। और खास कर में द स्टेटस विच वी वांट टू अचीव, देखा जाए तो ये उसी कर्मास के ऊपर ही डिपेंड करता है। और खासकर चाहे हम बिजनेस ले लीजिए, चाहे घर ले लीजिए, कोई भी ऑक्यूपेशन हो आपका, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है वास्तु के साथ में। तो आज का अगर हमारे सभी व्यूअर्स लिसनर्स, मैं इसमें ये आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत डिटेल्स में ये शो आज लेकर आई हूँ, क्योंकि हर किसी को जरूरी है अपने अपने बिजनेस, अपने वर्क, अपनी जॉब, अपने कैरियर से जुड़े सवाल कर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि हर किसी को ये चाहिए। तो उसके साथ में आपका जो भी जॉडियक साइन होगा, उससे रिलेटेड मैं साथ ही साथ में आपको बताऊंगी कि क्या हमारा डिफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट करता है, हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉडियक साइन। तो जॉडियक साइन आपको डेट ऑफ बर्थ से देखना है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का हो, उसका जो भी जॉडियक साइन हो, उस जॉडियक साइन का आपको एलिमेंट इजीली मिल जाएगा। और कहीं पे संजीव हमारे व्यूअर्स को अगर कहीं देखते हैं कि इट्स हार्ड, दे आर नॉट एबल टू गेट जॉडियक साइन, तो वो उनको नहीं मिल रहा, तो उस जॉडियक साइन के बारे में जानने के लिए उसकी क्या एलिमेंट है, क्या क्वालिटी है, वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूंगी कि उनका क्या एलिमेंट है और उसका क्या उससे जॉडियक साइन से रिलेटेड प्लैनेट है, जिसका वजह उनको फायदा ले सकते हैं, या अगर उन्हें परेशानी है तो उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल दीदी, तो आप इस हाँ, सबसे पहले आप वहीं पे जाओ। उससे पहले मैं हमारे लिसनर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि करंटली राइट नाउ दे आर लिसनिंग टू द शो डिवाइन वास्तु टॉक विद डॉक्टर रेवा कुमार। Not only they can listen to it on Radio Zingi's frequencies, which is 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 13:10 a.m. up in Parsippany, Morris County area, 96.7 FM in Edison, Middlesex County, but they can also watch us live on Radio Zingi Tri-State. That's our Facebook page, Radio Zingi Tri-State. Do watch us live. And then you can also listen to us on Radio Zingi's app in case if you're traveling. And then if none of those two options are available to you, then download Radio Zingi app and listen to Radio Zingi on the app. And ये जो बात होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होगी, बिकॉज करियर के बारे में हर कोई सोचता है, और करियर कभी मूव करनी होती है, कभी आगे बढ़ना होता है, कभी उसमें ही प्रमोशन लेना होता है। सो नाउ रेवा जी हम सबको समझाएंगे, बताएंगे वास्तु एंड ज़ोडिएक साइन एंड करियर, हाउ दे आर रिलेटेड। दीदी गो अहेड। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे सन। तो सन जिसके साथ में, जिस जॉडियक साइन के साथ में सन प्लैनेट जुड़ा हुआ होगा, वो लोग जो भी होते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी सिंसियर। आप कह सकते हैं सिंसियर के साथ में वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो, उनकी एक एनर्जी ही अलग होती है। और प्रोफेशन के हिसाब से देखिए, दे माइट बी एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, यू कैन से director and the celebrity too. Even they people are related with any federal jobs या government jobs से जुड़े होने चाहिए। अब जिनको भी लगता है कि इनसे प्रोफेशन से हैं और दे आर हैविंग सम इश्यूज, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू इनहैंस ईस्ट डायरेक्शन ऑफ देयर हाउस। ईस्ट डायरेक्शन को इनहैंस करने के लिए उनको वहां पर बैम्बू प्लांट लगा सकते हैं, या राइजिंग सन की पेंटिंग अगर वो ईस्ट वॉल पे लगाते हैं, ईस्ट टुवर्ड साउथ ईस्ट तक हम ईस्ट वॉल को काउंट करेंगे, जिसकी डिग्री आप स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री टू 140 डिग्री। चाहे आपका वो लिविंग रूम है, चाहे आपकी ऑफिस की जगह है, सन प्लैनेट से रिलेटेड जो इस प्रोफेशन से है, इफ यू थिंक दैट देयर इज हैविंग सम इशू, सो यू हैव टू इनहैंस योर ईस्ट डायरेक्शन। आप ईस्ट को इनहैंस कीजिए। नेक्स्ट मैं लेकर आऊंगी मून। मून प्लैनेट से जुड़े जो भी हैं, दे पीपल आर मोस्टली विद द सोशल एनवायरनमेंट से बहुत जुड़े हुए होते हैं। आज मैंने बहुत डिटेल्स में लिया है, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग सम पॉइंट्स कि मैं कहीं मिस नहीं कर जाऊं। और मून प्लैनेट के ज्यादातर ये हॉस्पिटैलिटी के साथ में अटैच होते हैं। हॉस्पिटैलिटी मीन्स कि दे आर वेरी इमोशनल बहुत होते हैं। इसमें मैंने ये बहुत देखा है कि मून प्लैनेट की एनर्जी वालों को संजीव जी बहुत ज्यादा, कई बार कहते हैं ना कि वो एक जगह पे अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बहुत ज्यादा मूव करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सोचते हैं कि वो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन कई बार उनको ये नुकसान भी दे जाता है।
खास तौर पे जो आप कह सकते हैं कि नर्सिस हैं या काउंसलर्स हैं, उनसे जुड़ी आप कह सकते हैं कि समथिंग इन द फूड बेवरेजेस के साथ में भी जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि दे हैव टू कीप अ क्रिस्टल ग्लोब। जो क्रिस्टल का ग्लोब होता है वो आप अपने ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ मून प्लैनेट। और या आप उसके साथ में कर सकते हैं पीकॉक फेदर्स। पीकॉक फेदर्स का नंबर 9 होना चाहिए। 9 पीकॉक फेदर्स अगर आपके ओरिजिनल हैं और आप उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो ये आपको काफी फायदा देगा। एक चीज और भी होता है, मून प्लैनेट वाले खासकर अपने पर्सनल रिलेशन के बीच में अपने आप को स्टेबल नहीं लेते, बहुत जल्दी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उनके लिए मून प्लैनेट के लिए जो इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हो, वहां के लिए बहुत अच्छा अगर आप पीकॉक फेदर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। और अगर आप सोचते हैं कि आपको अपनी वर्क प्लेस के ऊपर में कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो तब वहां पर आप क्रिस्टल का ग्लोब नॉर्थ वेस्ट में रखिए ताकि आप वहां पर स्टेबल हो सके। नेक्स्ट लेना चाहूंगी मार्स। मार्स वाले बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं एंड दे आर हैविंग अ वेरी डिटर्मिनेशन पावर, खासकर दे आर हैविंग करेज। और खास ये जो लोग हर तरह दे पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। मार्स के जितने भी आप देखेंगे, क्योंकि इनमें एक फायर की एनर्जी होती है, फायर एलिमेंट में बहुत ज्यादा होता है एंड दे वांट टू गो एट एनी एक्सटेंट। अगर ये अच्छा करेंगे तो एक हद तक एक्सटेंट तक चले जाएंगे, अगर ये किसी से नाराज होंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। तो इनके लिए बहुत ज्यादा ये जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में तो होते ही होते हैं, लेकिन कुक्स भी हैं इसके बीच में आप ले सकते हैं। along with that they are very good professors also, टीचिंग में भी ये मार्स वाले आपको पाए जाएंगे, खासकर साइंटिस्ट। मार्स वालों के लिए अगर कहीं पे भी आप देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या आप सोचते हैं कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे, कहीं आप ब्लॉक हो रहे हैं, यू हैव टू फोकस टुवर्ड्स साउथ, बिकॉज साउथ इज रिलेटेड विथ मार्स, दैट इज अ अर्थ एलिमेंट। खास तौर पे जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रियलिटर हैं, बिल्डर हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि कहीं उनको ब्लॉकेज मिल रही है, तो आपको बहुत ही सिंपल रेमेडियल दे रही हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी दे रही हूँ, जिसे कहते हैं ना फिनिक्स लगाते हैं, एक बर्ड होती है, या ईगल की बर्ड ले लीजिए, फिनिक्स ले लीजिए, आप अपनी साउथ वॉल पे लगाइए। क्योंकि फिनिक्स एक सिंबल देता है, ईगल एक सिंबल देता है हाइट पे जाने के लिए। और मार्स वाले इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं कि उनको हमेशा एक हाइट पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है, अगर आप अपनी साउथ की वॉल को इनहेंस करें, लेकिन साउथ की वॉल में कभी भी पानी को जगह नहीं दीजिए। डोंट कीप वाटर ओवर देयर, या उसको डिग करने की कोशिश नहीं करें कि कई बार कहते हैं कि बाथरूम हो जाता है। ये सब चीजें आपको जरूर देखनी है। अगर किसी कारणवश वहां पर है भी सही, तो वहां पर आपको मैं बहुत एक सिंपल रेमेडी दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल। आपने ये देखा है कि जैसे कि संजीव बहुत सालों पुराने, हजारों साल पुराने देखो, तब बाथरूम घरों के अंदर नहीं होते थे, बाहर जी, होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यस। कभी भी आप देखो कि आप राजा महाराजाओं के महल देखो, कभी भी पुरानी अगर कोई पिक्चर्स देखो, कुछ देखो, उनके जो बाथरूम होते थे जिसको बोलते थे हमाम खाना, उस हमाम खाना में आपको कभी भी टॉयलेट की जगह नहीं मिलेगी, उनको आपको बाथिंग टब टाइप दिखाई देगा जरूर। लेकिन उस बाथिंग टब पे बहुत ध्यान से, मैंने बहुत रिसर्च करके मैं बता रही हूँ, एंड आई रेड इट प्रॉपर्ली, कि जब वो हमाम खाना दिखाते थे कि टॉयलेट के लिए वो यूज उस जगह को नहीं करते थे, हजारों साल पहले तब भी बाहर जाते थे। इवन कि आज भी इंडिया में देखिए गांवों के बीच में आज भी लोग बाहर के लिए जाते हैं, लेकिन जो हमाम खाना होता था उसके ऊपर में जगह जगह पे वहां पे वासिस होते थे, मिट्टी के वासिस होते थे, मिट्टी के बर्तन रखे हुए होते ना। उसका कारण क्या था मिट्टी के बर्तन करने का, कि वहां की जो भी मतलब कि मिट्टी का बर्तन में अगर उनको अचानक इमरजेंसी है, रात को अगर उनको टॉयलेट जाना है, वहां टॉयलेट घर के अंदर नहीं होते थे, तो वो उस मिट्टी के बर्तन को यूज करते थे एज अ डिस्पोजल, लेकर यूज करके अगले दिन नेक्स्ट डे वो उसको डिस्पोज कर देते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर साउथ की तरफ में जहां पर हमें लगता है कि हमारा टॉयलेट या बाथरूम है जिसकी वजह से मार्स से जुड़े या फायर एलिमेंट से जुड़े हम ग्रो नहीं कर रहे, तो बहुत सिंपल है, आप मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, डोंट बाय एनी एक्सपेंसिव, और उसको आप येलो पेंट कर दीजिए।
सिर्फ लाकर उसको खाली रखना, उसमें आपने कुछ नहीं रखना। आप उसको अगर साउथ में रखेंगे तो मार्स वालों के लिए मैं आपको 100% कह रही हूँ कि आप देखिए आप कैसे ग्रोथ पाते हैं। बट इट हैज टू पेंट इन येलो। आई डोंट वांट कि आप इतना कोई ब्रांडेड ले लीजिए या उस पर पैसा खर्च कीजिए। नो, जस्ट ब्रिंग कि वहां मिट्टी का जरूर होना चाहिए, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, क्ले होता है, वैसे ही अगर आप ला के रख देंगे वो एक नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब देखेंगे उसमें क्रैक आ गया, आप उसको डिस्पोज करके दूसरा लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं प्लैनेट के लिए बात करूंगी संजीव जी, दैट इज अ मर्करी। मर्करी, each and every person on this universe needs some money, जो मरकरी से जुड़ी हुई है। और मरकरी के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बुद्ध से जुड़े हुए, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और खासकर उनको आप कह सकते हैं कि दे आर स्कॉलर टू। वो बहुत ही ज्यादा फिलोसफर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड शार्प होता है। पर उनके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी मच एनिमन, कि वो जो कह रहे हैं ठीक है, कई बार वो हमारे को परेशानी भी हो जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको करियर से जुड़ा कोई इश्यू है, खास तौर पे उनके लिए भी बहुत ही सिंपल रेमेडी है कि जैसे कि कहते हैं हम लोग तुलसी। तुलसी वैसे ही हर किसी को यहाँ पे भी मिलती है, दुनिया में हर जगह पे होती है। आप उसको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में लगाइए। और कभी भी एक ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी व्यूअर्स को भी, कि अगर आपने तुलसी लगाई है और देख रहे हैं कि तुलसी अगर कहीं सूख रही है या तुलसी का कहीं खराब हो गया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको पैसे की परेशानी या पैसे की तंगी आ सकती है। उस समय के लिए कि इमीडिएटली आप तुलसी दूसरी रिप्लेस कीजिए और तुलसी को पूरे ध्यान से अपने घर पे जगा दीजिए। बेस्ट है जो मरकरी से जुड़े, अगर जिनका करियर का इश्यू है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट से लगाते हैं और उसको केयर करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट मैं लेकर आना चाहूंगी जुपिटर। अब जुपिटर वाले हैं, उनका दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये तो मानना ही पड़ेगा। वो लोग आपकी किसी चीज को नहीं कहेंगे। जुपिटर आर वेरी ट्रूथफुल ऑल्सो एंड वेरी कंसर्न केयरिंग पीपल। और खास कर में जब डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो जुपिटर से, मैंने देखा है कि जहां जहां जॉडिक साइन के मुताबिक जुपिटर प्लैनेट से जुड़ी अगर उनके चार्ट में आया है जॉडिक साइन में, संजीव जी वो डॉक्टर्स बने ही बने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ में उनकी जो एक कहते हैं कि जो मुंह से बोलते हैं वो सच होता है। वो जो उनकी केयरिंग की नेचर है वो बहुत अच्छी होती है एंड दे नेवर से नो। उनके लिए खास तौर पे बहुत जरूरी है कि आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जहां आपका लिविंग रूम है, वहां पानी में पीले रंग के फूल डाल के रखिए। नॉर्थ ईस्ट में पानी में पीले फूल डाल के रखिए। इसको आप एक हैबिट बनाइए। जब देखिए कि आपके फूल खराब हो रहे हैं तो आप उनको निकाल के दूसरे फ्लावर डाल सकते हैं वहां पे करने की। लेकिन कहीं पे भी ब्लैक कलर को जगह नहीं दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक को कहीं मत आने दीजिए, क्योंकि ब्लैक उस जुपिटर की एनर्जी को डार्कनेस में लेकर आएगा। उससे क्या होगा कि आप सोचेंगे कुछ और डिसीजन कुछ और लेंगे। तो बहुत जरूरी है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पानी में अगर आप येलो कलर के फ्लावर्स के पेटल्स रखते हैं तो इट हेल्प्स लॉट। नेक्स्ट मैं करने के लिए जा रही हूँ, कहने के लिए वीनस। जो वीनस वाले होते हैं, इनको दे लव ब्यूटी, दे लव आर्ट, दे लव म्यूजिक, और बहुत ही ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि दे आर हैविंग ए वेरी गुड सेंस ऑफ आर्ट एंड द सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, वेरी गुड होस्ट, बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है, बहुत अच्छा ये आपको एंटरटेन करते हैं वीनस में जब भी आएंगे। लेकिन इनको क्योंकि दे लव डिजाइन्स आर्ट, ये अपने आर्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस करते हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है, अगर कहीं वीनस से जुड़ा कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको उस प्लैनेट से आप ग्रो नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, एमेथिस्ट का क्रिस्टल लोटस मिल जाता है, जो आप अपने लिविंग रूम के साउथ ईस्ट में रखेंगे। एमेथिस्ट का crystal lotus, let it be in the southeast, because southeast is related with Venus planet. वो वीनस को इनहेंस करता है, और वीनस कौन है, फीमेल्स। अगर आप इसको ये करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको अपने वर्क, अपने करियर, अपने काम पे कभी भी किसी लेडीज के साथ में इश्यू नहीं आई है, और लेडीज को भी एक दूसरे की लेडीज के साथ में मतलब सेम जेंडर से कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो वीनस की एनर्जी को इनहांस करता है
उसको बहुत पॉजिटिव देता है। नेक्स्ट मैं करने के लिए आ रही हूँ सैटर्न। अब सैटर्न जिसके भी होता है, दे पीपल आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग। लॉयर कह सकते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं ये सैटर्न से, जजेस जो होंगे वो सैटर्न से जुड़े होंगे। सैटर्न वालों की एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है, जो प्लस पॉइंट है, ये कभी भी किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होने देते। मीन्स कि अगर भी कोई एम्प्लॉइज है, कुछ भी है, सैटर्न उनके साथ में कभी भी संजीव इनजस्टिस नहीं होने देगा। दे विल सी, अगर उनकी लेबर का $1 है, दे विल लव टू पे देम $2। और अगर कहीं पे वो 2 पैसे भी उनका या $2 भी किसी गरीब का रखेंगे या किसी एम्प्लॉय का या लेबर का, तो सैटर्न के उस नेगेटिविटी से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ एक ही चाहिए कि दे वांट टू हेल्प एवरीबॉडी। और इनके लिए बहुत जरूरी है मेटल का फर्नीचर। मतलब कि अगर आपका वेस्ट की तरफ, आपका अगर सपोज कर लीजिए आपका वेस्ट का डायरेक्शन है, एंट्रेंस रोड वेस्ट होता है, तो वहां पर आपको मेटल से जुड़ी चीज लगाइए, जैसे कि हम हॉर्स शू लगा सकते हैं। और हॉर्स शू को जब लगाएंगे तो आप हमेशा उसको यू शेप में लगाइए, मींस लेट द थिंग्स कम इनसाइड द हाउस। वो मेटल की एनर्जी को इनहांस करता है। और साथ ही साथ ट्राई टू फीड पुअर पीपल। जितना आप गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, होमलेस को खाना खिलाएंगे, आप पक्षियों को दाना डालेंगे, उतना ही सैटर्न की आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेंगे और आपका कैरियर बहुत ग्रो करेगा। नेक्स्ट मैं कहना चाहती हूँ, लास्ट है, दैट इज राहु एंड केतु एंड इट इज अ ड्रैगन ट्रेल। अब एक इसको देखा जाए तो हम इसको शैडो प्लैनेट कहते हैं, राहु और केतु को। लेकिन इसके बीच में एक जो उनका ऑक्यूपेशन दिया जाता है, दे आर टेक्नीशियन, दे आर, आप कह सकते हैं कि मैजिशियन ऑल्सो, एंड वी आर हैविंग ऑल सीक्रेट सर्विसेज। लेकिन इनकी एक नेचर है जो भी है, अगर इनको करियर में ग्रोथ नहीं मिलती तो उसका मेन रीजन यही पाया जाता है, क्योंकि they always disclose their plans, they open their plans. As soon as they open their plans, they never successfully. जब तक राहु केतु से जुड़े प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर में, you have to keep your secrets with yourself. मतलब कि आपकी प्लानिंग भी इवन की राइट हैंड से तो लेफ्ट को नहीं पता होना चाहिए, that they have to take care. और इनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो खासकर मैं देना चाहती हूँ, स्पेशल फ्लाइंग बर्ड्स। अगर ये फ्लाइंग बर्ड्स को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, और फ्लाइंग बर्ड्स को, और इवन कि आपको बर्ड्स को फीड करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में अगर आप फीडर लगाते हैं और बर्ड्स को फीड करते हैं, तो आप राहु से और केतु से, जो हमारे ड्रैगन ट्रेल, जो हमारे शैडो प्लैनेट्स हैं, इनसे जुड़ी जो हमारे करियर में प्रॉब्लम आती है, उनसे आप काफी रिलीफ पा सकते हैं। Wow, Didi, how well that you have explained, listeners and the viewers on Radio Zindagi and of course Radio Zindagi's Facebook page. आज रेवा जी जो बात कर रहे हैं वो है डिवाइन एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन फॉर करियर ग्रोथ, एंड जो 9 प्लैनेट्स जो होता है हर एक ग्रह को लेके उन्होंने समझाया, उन्होंने सजेशन दिए कि अगर आप इस अगर आपकी राशि का ये ग्रह है तो आपको ये करना चाहिए. यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम रेडियो जिंदगी's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. And should you wish to contact Rewa ji after the show, you can certainly do that. And her number is 510-868-3338. That's a 510-868-3338. Her website is worldofdivinevastu.com. Remember, वास्तु घर के लिए या तो बिजनेस के लिए is always effective. वास्तु को समझना भी जरूरी होता है. One phone call to Rewa ji and she will help you with the vastu, all the details, and on phone consultation, on video consultation, and even sometime in-person consultation can also be possible. So do contact Rewa ji after the show, Divine Vastu, 510-868-3338. And अगर आप उनको email भेजना चाहते हो, so you can definitely also send an email, and that the email ID is divineabc@gmail.com. Right, Didi? जी बिल्कुल, divineabc@gmail.com. अब आपने करियर ग्रोथ के बारे में और ये इतने सारे सोल्यूशन बताए डिवाइन एस्ट्रो वास्तु को लेके. अब मैं थोड़ा सा वहीं पे करियर के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई थी, जो हर एक का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि खुद का घर हो. तो खुद का घर के लिए when they shop around, when they look around, obviously they get confused and they're not sure what to do, what not to do, and many times
people give up on that, ड्रीम also के बाद में देखेंगे। तो ऐसी कोई वास्तु की टिप है जहाँ पे उनकी विश जो होती है अपने ड्रीम होम के लिए वो फुलफिल हो जाए? जी हाँ संजीव जी, क्यों नहीं। कहते हैं कि घर चाहे एक छोटा से छोटा इंसान हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पास अपना घर हो। हर किसी की ख्वाहिश होती है। कहते हैं कि चाहे एक रूम हो जाए, एक रूम की छत हो, लेकिन अपनी छत होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उस छत के नीचे वो चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, चाहे वो सूखी दाल रोटी खा ले, लेकिन वो एक सेटिस्फाइड होता है। और बहुत जरूरी होता है इस ड्रीम होम को बनाना, चाहे चाहे हमें एक कमरे का मिले, चाहे वो हमारे को 10 कमरे का मिले। अब कई बार बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाता, और वो हमारा ड्रीम पूरा नहीं होता, और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। उसके लिए मैं जरूर ऑफ कोर्स मैं टिप देना चाहूंगी अपने सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, और ये टिप हमारी बहुत सक्सेस रही है। सालों साल, कितने साल हो गए हैं, मैं हर साल ये टिप दिवाली से पहले शेयर करती हूँ, और ये जरूर कहती हूँ कि आप इसको ये करिए और फिर मेरे को भी ये बताइए कि अगली दिवाली आपने अपने घर मनाई कि नहीं मनाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये कॉल्स लेती हूँ कि यस दे वांट टू शो मी दैट हाउस, और दे पीपल हैव मूव्ड टू न्यू हाउस एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो इसके लिए मैं जरूर बताती हूँ, क्योंकि सही समय है। ये बात अलग है कि हमारा पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसको हम 30 दिन के अंदर में घर देख सकते हैं, खरीद नहीं रहे वो अलग चीज है, लेकिन 30 दिन के बाद में जैसे ही अच्छा समय आएगा तो आप अपना घर भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल रेमेडी है। आपको क्या इनहांस करना है? साउथ। साउथ जो मार्स है, साउथ जो आपका अर्थ एलिमेंट है, वहां पर आपको क्या करना है? दिस इज ए टाइम, अगर अभी तो नहीं आप ले पाएंगे, लेकिन पहले नवरात्रि को ऑन 16 अक्टूबर को आप जरूर लीजिए। खास तौर पे आप गोल्ड की एक छोटी सी ब्रिक ले सकते हैं। छोटा सा ब्रिक लीजिए, गोल्ड का ब्रिक शेप में, जिसको बोलते हैं ना कि कॉइन की तरह होता है, राउंड नहीं लेना है आपको, ब्रिक शेप में छोटी सी गोल्ड की लेनी है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जो इजीली आप ले सकते हैं। आप उसको लेके जहां आपके घर का पूरा साउथ है, करेक्ट साउथ की वॉल है, वहां पर आप उसको चिपका दीजिए। पेज किसी भी टेप के साथ में उसको लगा सकते हैं। एंड लगाने के बाद में लेट इट बी देयर, और फिर आप देखिए कि इमीडिएटली आपको क्या रेस्पॉन्स मिलता है। आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा घर खरीदने के लिए। आप अपनी पसंद का घर ले सकेंगे, चाहे वास्तु बेस्ड ले या नहीं ले, दैट्स आपकी आउटलुक है, मैं उसमें नहीं कुछ कहूंगी। वो आपको मिलेगा, आपको उसको फाइनेंस कराने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छी तरह से उस घर में रह सकते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल एंड वेरी अफेक्टिंग टिप विच आई एम शेयरिंग विथ माय ऑल व्यूअर्स, कि घर के आप चाहे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, चाहे आप किराए के घर पे रह रहे हैं, घर की साउथ वॉल पे आप गोल्ड की एक छोटी सी ब्रिक लगा दीजिए, जो कि आपको किसी ज्वेलर शॉप से मिल जाएगी, और फिर देखिए कि आप कैसे ग्रो करते हैं। खुद का घर बनता है बस बिल्कुल ऐसे ही, इमारत भी बनती है बस ऐसे छोटे से ही टिप को फॉलो करने के बाद। और जिस तरह से आपने बताया कि इतना इस टिप का सक्सेस रेशियो जो है वो इतना हाई है कि इस टिप देने के बाद आई एम श्योर कि मैनी ऑफ योर क्लाइंट्स एंड मैनी ऑफ योर वेल विशर्स हैव हैड देयर ड्रीम कम ट्रू। उनका जो घर लेने का सपना था वो सपना पूरा हो गया। सो थैंक यू सो वेरी मच for sharing the tip with us. Once again, listeners and the viewers, Rewa ji can be contacted after the show. Divine Vastu 510-868-3338. That's a 510-868-3338. And the website is worldofdivinevastu.com. Every Thursday on Radio Zingi's East Coast side, Rewa ji comes on Radio Zingi Thursday at 3:30 p.m. Between 3:30 and 4. It's a Divine Vastu talk. But when it comes to Vastu, believe in Vastu, follow Vastu, and to understand Vastu is a key thing. So for any question, do give her a call, and then do listen to our show. And also, you can also go on the Radio Zingi Tri-State Facebook page, and you can also watch the videos, and you can also watch today's video and make a note of it. Okay, Didi, with that note, in the end, आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, जाते जाते मैं जरूर कहना चाहूंगी, एक टिप और जरूर जल्दी से देना चाहती हूँ, क्योंकि कल से जो पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, मैं ये आफ्टर 168 years वी गॉट दिस पुरुषोत्तम मास। अब अधिक मास कई बार 3-3 साल के बाद में आता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास जो आया है
168 ईयर्स के बाद में आया है एंड इट इज वेरी पावरफुल। तो व्यूअर्स, लिसनर्स, अगर आपको समय मिले खास तौर पे इन 30 दिन के बीच में, ट्राई टू चैट कोई भी भगवान जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका नाम लेने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट मॉर्निंग में अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा फिट करिए, जिसको हम बोलते हैं एलम का पाउडर, उसी में ही थोड़ा कपूर का पाउडर जिसको कैम्फर बोलते हैं, थोड़ा सा रॉक सी सॉल्ट मिक्स करके अगर आप थोड़ा सा भी शावर लेने की कोशिश करेंगे अपनी बॉडी पे डाल के, तो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी खत्म होगी। क्योंकि ये शुद्धिकरण का मंत्र है, ये आपको आपके शरीर के, आपके घर को, आपकी अराउंड के जितनी भी एनवायरमेंट है उसको शुद्धिकरण में हेल्प करता है। तो ट्राई टू हैव इसको करने की आप कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको फायदा देगा। पुरुषोत्तम मास की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही प्रेयर करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है और हमारा सारा परिवार सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं दुआओं के साथ इजाजत लेती हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट टिप। एंड देन जब नेक्स्ट थर्सडे बात करेंगे तो अधिक मास के बारे में, पुरुषोत्तम मास के बारे में आपसे कुछ और भी जानकारी हम जानेंगे और वास्तु के बारे में भी बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में वास्तु को फॉलो करना और क्या क्या घर में करना जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। दीदी बहुत धन्यवाद आपका, हम सबकी तरफ से। यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड विल टॉक टू यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू संजीव, थैंक यू viewers. Thank you. And with that note, we come to the end of this Divine Vastu Talk Show with Dr. Reva Kumar right here on Radio Zindagi. It is 4 o'clock and I am just getting ready to let RJ Toy come in with his show Totally Toy right now on Radio Zindagi. 4 to 5, he's going to entertain you, Totally Toy. And then 5 to 6, carry on Harry with Harry Malhotra live from Long Island right here on Radio Zindagi. I am Sanjeev signing off. Thank you so much for listening to America's biggest South Asian radio network, that is Radio Zindagi. I shall be back with you any day, as you know, on Radio Zindagi. Until then, you take care of yourself, stay safe. Jiye ja. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra.